So let us start today's session. Okay. So in our previous class, that's yesterday, we started to know about energy signal and the power signals. We have already started their definitions. Okay. Um, सर हेलो हाँ, सर बोल रहे थे एक रिक्वेस्ट था, अगर जो आप न्यूमेरिकल करवा रहे हैं उसको अगर व्हाइट बोर्ड में थोड़ा बना के अगर करवाते सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसे होता है, व्हाइट बोर्ड में नहीं होता सर, थोड़ा व्हाइट सा बोर्ड और में अच्छा से देखो ना, व्हाइट बोर्ड में लैपटॉप में तो प्रॉब्लम होगा। माउस है ना, टच स्क्रीन नहीं है ना। हम्म, इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए नोट बनाना पड़ता है ना, नहीं तो हम खुद से वो व्हाइट बोर्ड पे जारी लिख के हो जाता है। लेकिन ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास राइट नाउ, तो इसलिए नोट बना के इसी से हम दिखाते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड में लैपटॉप में तो नहीं होगा शायद। ठीक है, मोबाइल में होगा, ले मोबाइल में स्क्रीन छोटा है, इसके लिए वो हमारा सिस्टम अलग है। वो पेन का ये लाना है, पेन पेन का शायद इसी से होगा। तो भी बोलो तो जहाँ प्रॉब्लम होगा, तो हम बता देंगे। सिस्टम तो मेरे पास नहीं है यहाँ पे घर में। तो we got the formula for energy signals and the power signal, how to find out the energy and the power. Yesterday we have studied. Today we will go for some numerical calculations. Okay, that you have to understand. So that is the formula yesterday I discussed. Energy of any signal minus infinity to plus infinity mod of x t square dt. How it comes already I told you. And the formula of the power, that is limit t tending to infinity 1 upon t minus t by 2 to plus t by 2 एक mod of x t square dt. ये था तुम्हारा दो फॉर्मूला। तो ये I told you these two definitions. If energy of signal is finite, then power of the signal will be 0, whereas in the case of if the power of signal is finite, its energy will be infinite. That is in the case of power signal. So in the case of power signal, power is finite, energy will be infinitely large. In the case of energy signal, energy is finite and the power will be 0. So let us first example, today's example, that is xt is equal to e to the power minus 4t ut. That is our signal. Now you have to find out the energy of the signal. Now LT limit t tending to infinity minus t by 2 to plus t by 2 mod of ये क्या है, mod of xt square है. So mod of xt क्या है, e to the power minus 4t है. So e to the power minus 4t ut square. You people know that ut must continue from 0 to positive infinity, correct, because ये unit step function है, and unit step function it starts from 0 and go up to plus infinity. Okay, so that's why this definition here ये जो तुम्हारा इंटीग्रेशन का लिमिट है वो चेंज होकर क्या हो गया, 0 to infinity हो गया. Okay, so and 0 to infinity, what is the value of ut is 1. So e to the power minus 4t into 1 whole square, तो ये क्या हो जाएगा, e to the power minus 4t into the power minus 4t, that is e to the power minus 8. So e to the power minus 8 0 to infinity dt. So ये डेफिनेट इंटीग्रल है. So e to the power minus 8t को जब इंटीग्रेट करोगे क्या होगा, e to the power minus 8t डिवाइडेड बाय minus 8 होगा. लिमिट लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इंफिनिटी है. ना देखो यहाँ पे माइनस t है. So for minus infinity, when you are placing the value of upper limit, that is infinity, so e to the power minus infinity, e to the power minus 8 infinity हो जाएगा. e to the power minus
इन्फिनिटी मतलब क्या है, जीरो है, इसलिए अपर लिमिट का वैल्यू जीरो हो गया, and lower limit so negative and negative already it's a negative, so negative negative ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, so जीरो के लिए क्या होगा, e to the power जीरो that is 1, so 1/8 हो गया, so 1/8 joules, so it's a finite. So what we have taken the signal that is a energy signal because energy of the signal is finite, 1/8 joules. So xt is equal to e to the power minus 40 ut is an energy signal. So question in the semester exam question may come to whether test the signal is energy or not. Now see energy is equal to, we know that power into time, limit t tending to infinity करोगे तो क्या होगा, so यहाँ से find out power, ये शॉर्टकट मेथड है, हम लोग want to find out what is the now value of power because it's a energy signal. Okay, so now see p is equal to क्या हो जाएगा, 1/t limit t tending to infinity 1/t into e. तो एनर्जी का वैल्यू तुम्हारा फाइनाइट है, तो ये एनर्जी फाइनाइट है, 1/t है, सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ t, सो 1/infinity हो जाएगा, सो 1/infinity का वैल्यू कितना होगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, सो इसलिए तुम्हारा पावर क्या हुआ, पावर का वैल्यू जीरो हो गया, तो इसलिए मैंने बोला था वो डेफिनेशन, हाँ बोला डेफिनेशन में है ये, इफ द सिग्नल इज एनर्जी। सर हाँ सर एक बार फाइनाइट वाला सर वाला समझाएंगे ना सर, एक बार बस सर प्लीज। ये फाइनाइट वाला, ये वाला ना, यस सर, यस सर। देखो ये तो फॉर्मूला है, तो ut किधर रहता है, जीरो जीरो से इंफिनिटी तक वो स्टार्ट होता है कि नहीं है? यस सर। तो इसलिए देखो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक था ये लिमिट, सो ये चेंज होके जीरो से इंफिनिटी हो गया, क्यों हुआ, बिकॉज ut है यहाँ पे, ut नहीं होता तो यस नहीं सर। होता, हाँ ut मस्ट एग्जिस्ट फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, इसलिए 0 to infinity। हाँ इसलिए ये इंटीग्रेशन का लिमिट भी थोड़ा चेंज हो गया, जीरो से इंफिनिटी तक हो गया, लेकिन जीरो से माइनस Yes, sir. इंफिनिटी तक ut नहीं है, तो इसलिए ut के साथ ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, सो ut कंट्रोल करेगा ये सिग्नल का, तो इसलिए लिमिटिंग फैक्टर ये चेंज हो गया, जीरो से इंफिनिटी हो गया, बस ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन प्रोसेस है, तो ये कुल मिलाकर कितना निकल गया, 1/8 जूल निकल गया, तो एनर्जी हम लोगों का यहाँ पे जो सिग्नल मिला है उसका एनर्जी फाइनाइट मिल गया, 1/8 जूल है, सो हम भी देख लिया यहाँ पे पावर जीरो हो गया, सो दैट्स व्हाई यू रिमेंबर इफ द energy of any signal is finite then it should be energy signal, in that case power must be zero. Okay, so सर सर माय क्वेश्चन इज दैट सर वहां पर सर जो e to the power -8t/-8 और लिमिट फ्रॉम सर व्हाट इज दैट सर, वहां पे जो लिमिट लिखा सर ब्रैकेट पे सर, यहाँ ये पे ब्रैकेट सर स्क्वायर ब्रैकेट। यस सर। हाँ जीरो से इंफिनिटी तक, हाँ जीरो से सर ये सर वाला, वो थोड़ा सा लगा था सिग्मा लिखे हैं सर, इसलिए नहीं हमको नहीं लगा। नहीं सीमा नहीं है, ओहो ये इंफिनिटी है, जीरो से इंफिनिटी। ओके ओके तो सर। हाँ t जो इंफिनिटी होगा e टू द पावर माइनस में जीरो होगा, और जीरो का वैल्यू t जीरो होगा तो ये 1/8 हो जाएगा। A similar kind of expression we have xt is equal to 4 e to the power minus 2t plus 3 e to the power minus 4t ut है, तो सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन है, सो एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ut है कि नहीं, देखो यहाँ पे ut है, सो ut बोथ साइड हो जाएगा, तो ut होने से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लिमिट जीरो से इंफिनिटी हो गया, पूरा का पूरा जीरो से इंफिनिटी हो गया, और ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन तुम करो और जीरो से इंफिनिटी पुट करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 73/8 जूल हो गया, सो ये फाइनाइट है, सो इट इज आल्सो एनर्जी सिग्नल। तो खुद को तुम घर में ये प्रैक्टिस करना है, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ मॉड्यूल 1 and 2 I will give you some model questions. Okay, I will provide some model questions, so you will practice all those questions in your home. Okay, so that your concept will be more better. But what I given you in note form, I have written all the detailing. Okay, detail is there, so at least you go through the notes and ebooks. Okay, if you want to purchase civil system books, I can tell you. Okay, I can tell you आनंद कुमार का बुक है, वो भी बहुत अच्छा है, रमेश बाबू का है। ओके, तो
तुम परचेज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरुण कुमार का भी बहुत अच्छा बुक है। ना देखो यहाँ पे क्या लिया, xt, तो ये है कंक्लूजन है, मैंने लिख दिया ऑल द पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल, ओके, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स पहले देखना है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं। एग्जाम में समटाइम्स ये भी आ सकता है एमसीक्यू में, तो ऑप्शंस रहेगा, तो तुम पहले देखोगे ये पीरियोडिक है कि नहीं। जब पीरियोडिक होगा तो वो पावर सिग्नल होगा ही, और पावर सिग्नल होने से वो पीरियोडिक होगा ये ट्रू नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन देयर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कंटीन्यूअस होगा, सॉरी पीरियोडिक होगा, तो definitely that should be a power signal. But converse is not true. That means if the signal is power, okay, then the signal may not be, maybe or may not be a periodic signal. Okay, so that is बहुत important conclusion है। तो देखो यहाँ पे a sin t, ओके, ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो है कि नहीं। तो a sin t, इसका पावर तो तुम लोग जानते हो, और क्या है, VRM स्क्वायर बाय आर, VRM स्क्वायर बाय आर, दैट इज इक्वल टू पावर। तो आर यहाँ पे क्या है, यूनिट है, तो इसलिए मैंने क्या बोला था कल, पावर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू स्क्वायर, मींस पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर, VRMS स्क्वायर। तो VRMS से साथ पीक वैल्यू का क्या रिलेशन है, people will know that VRMS is equal to VM by root 2 और peak voltage by root 2, ओके। सो पीक वोल्टेज बाय रूट 2, यहाँ पे पीक वोल्टेज कितना है, ए है कि नहीं। पीक वोल्टेज क्या है, ये ए है, तो ए बाई रूट 2 होगा। आरएमएस वैल्यू क्या है, ए बाई रूट 2 है, तो पावर इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू स्क्वायर है, तो ए बाई रूट 2 का स्क्वायर हो गया, इसलिए क्या हो गया, स्क्वायर बाई 2। तो इजी है, स्क्वायर बाई 2 है, you can directly, you can put that value square by 2, but you can test also, you can find out the power according to your formula, okay, according to your formula. So you can find out, I have shown you both the ways, because it's a continuous and we know that this sort of a sin omega t, a cos omega t, if you can know that these are periodic signal and amplitude is a, so naturally the power should be a by root 2 whole square, so square by 2। now यहाँ पे देखो पावर इज इक्वल 1 upon t minus t by 2 to plus t by 2 mod of a sin t whole square, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर साइन स्क्वायर टी dt 1 by 2 पाई, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये देखो सिंपल साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो वी नो द फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर टी का मतलब क्या है, 1 माइनस cos 2 टी। तो 1 के लिए इंटीग्रेट करो, cos 2 टी के लिए इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो तुम जानते हो cos का वैल्यू ये 0 हो जाएगा विद इन ए पीरियड, cos का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे भी स्क्वायर बाय 2 निकल गया, तो ये फाइनाइट है, बिकॉज ए में भी 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो पावर का वैल्यू ये फाइनाइट है, ठीक है, पावर का वैल्यू फाइनाइट है, तो इसलिए ये पावर सिग्नल है। तो नेक्स्ट देखो, सेकंड थर्ड एग्जांपल मैंने ले लिया, xt इज इक्वल टू ut, ut मींस यूनिट स्टेप फंक्शन, देखने में क्या है, ये है, तो ये क्या है, ए पीरियोडिक है, क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक नहीं है, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए ये एपीरियोडिक सिग्नल है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट पावर ऑफ द सिग्नल। सो फॉर्मूला क्या है, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन t माइनस t बाय 2 टू प्लस t बाय 2 मॉड ऑफ ut स्क्वायर इक्वल xt स्क्वायर। सो ut का वैल्यू क्या होता है, तुम लोग जानते हो 1 है, और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 1 अपॉन t 0 टू t बाय 2 हो गया, ये 0 टू t बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है ना। देखो वैल्यू कितना आ गया, हाफ निकल गया, सो हाफ वाट, बिकॉज पावर है, सो हाफ वाट, इट्स ए फाइनाइट वैल्यू है। सो देखो ये एपीरियोडिक है, मैंने जैसे बोला लास्ट, ये
पीरियोडिक होगा तो पावर सिग्नल तो होगा ही होगा, तो रिवर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स पावर सिग्नल होगा होने से वो पीरियोडिक होगा ये तुम नहीं बोल सकते। ये वन एग्जांपल है। देखो ये पीरियोडिक सिग्नल है बट ये पावर सिग्नल है। तो ये ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। सो यूटी पीरियोडिक सिग्नल है, इसका एनर्जी सॉरी इसका पावर हाफ वाट निकल गया। सो देयरफॉर यूटी दैट यूनिट स्टेप फंक्शन शुड बी ए पावर सिग्नल। यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब देखो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, लिमिट टी टेंडिंग टू पी इनटू टी। पावर तुम्हारा फाइनाइट है, टाइम क्या होगा, टाइम यहाँ पे इनफाइनाइट तक चलता है। सो टाइम इनफाइनाइट हो गया। सो टाइम इनफाइनाइट होने से तुम्हारा एनर्जी इनफाइनाइट हो गया। सो पावर तुम्हारा फाइनाइट है, एनर्जी इनफाइनाइट है, इसलिए ये पावर सिग्नल हो गया। देखो और एक सिग्नल ले लिया, ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये। साइन टी इटसेल्फ कंटीन्यूअस, ठीक है। यूटी सॉरी साइन टी सर व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन सर? ये वाला, ये जस्ट टेस्ट करने के लिए और जो पावर का एनर्जी का वैल्यू क्या हुआ, ठीक है। तो ये देखो पावर तो तुम्हारा फाइनाइट मिल गया, हाफ मिल गया। टाइम क्या है, टाइम देखो ये टाइम तो इनफाइनाइट तक चलता है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो फाइनल वैल्यू क्या है, टाइम का इनफाइनाइट है, इसलिए टाइम का वैल्यू इनफाइनाइट है। दो पावर का वैल्यू फाइनाइट बट टाइम इज इनफाइनाइट है, इसलिए एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पावर का वैल्यू फाइनाइट है, इसलिए ये पावर सिग्नल है। सो यूनिट स्टेप, यू रिमेंबर यूनिट स्टेप जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज पावर सिग्नल है। तो क्वेश्चन में एमसीक्यू में इफ आएगा क्वेश्चन यूटी, ओके, यूटी इज गिवन, नाउ टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ द signal, energy signal, power signal, none of these, okay. So definitely it should be a power signal. ना देखो ये जो दूसरा जो एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज sin t into ut है। sin t itself ये पीरियोडिक है बट ut अपीरियोडिक है। तो देखने में ये क्या हो जाएगा, sin t के साथ ut मल्टीप्लाई है, इसलिए sin t 0 से स्टार्ट होगा, ये कितना दूर चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। लेकिन देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, इनफाइनाइट टाइम चलेगा ये, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड +1 से -1 तक ही रहेगा। तो ये +1 से -1 तक वैल्यू रहेगा, कितना टाइम रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा। ये नेचर है सिग्नल का, xt का, ठीक है। नाउ यू गॉट द रिलेशन पावर लिमिट t टेंडिंग इनफिनिटी 1/t -t/2 टू +t/2 sin स्क्वायर t ut। तो मान लो ut यहाँ पे है, तो लिमिट तो थोड़ा चेंज होगा। सो लिमिट t टेंडिंग टू इनफिनिटी 1/t, ये लिमिट क्या हो जाएगा, ut है इसलिए 0 से t/2 तक हो जाएगा। तो 0 से t/2 हो गया ना। देखो साइन स्क्वायर है यहाँ पे, तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू 2 साइन स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 - cos 2 थीटा होगा, और नहीं तो क्या होगा, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो ये फॉर्मूला है। नाउ क्या हो गया, cos 2t का वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, इफ यू विल नो दैट cos 2 को इंटीग्रेट करोगे ये लिमिट में ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 के लिए क्या होगा, t होगा, t के लिए तुम लिमिट होगा 0 से t/2, ये dt नहीं रहेगा बिकॉज ये इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। तो dt नहीं होगा यहाँ पे, 0 से t/2 हो गया। नाउ पुट द वैल्यूज, ओके। तो ये क्या हो गया, देखो 1/4 निकल गया। तो क्या है ये पावर xt का, देखो पावर पावर तुम्हारा फाइनाइट है। सर एक बार सर प्रीवियस स्लाइड्स को कीजिएगा ना सर। बोलो पहले से ये है, यस सर। ये तुम्हारा सिंपल इंटीग्रेशन है, हाँ, ये टॉप नहीं है, इंटीग्रेशन इधर छोटा छोटा ही है। तो तुमको ये क्या है, खुद को प्रैक्टिस करना है, नोट तो रहेगा लेकिन बिना देखे तुमको घर में ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो
क्या है ये 1/4 है, सो ये फाइनाइट है, सो एक्स टी इज ए पावर सिग्नल। सो देखो साइन टी यू टी जब मल्टीप्लाई है ये एपीरियोडिक सिग्नल है, बट इसका वैल्यू देखो, ये जो एक्स टी है इसका वैल्यू +1 से माइनस होता है, फाइनाइट है हाँ इन्फिनिटी तक। ये जो साइन टी यू टी है ये भी पावर सिग्नल है, ठीक है। तो अब तक जो प्रॉब्लम तुम कर चुके हो उसके लिए हम लोग कुछ कमेंट्स लिखे हैं यहाँ पे, ये तुमको दिमाग में रखना है फॉर योर बेटर में, क्योंकि ये दिमाग में छूट जाता है। देखो क्या बोला मैंने, इफ एक्स टी इज एग्जिस्टिंग फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन, ओके इनफाइनाइट टाइम तक ये एग्जिस्ट है, एंड इज डिक्रीजिंग इन नेचर, और वैल्यू डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, इन नेचर दैट इज लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब ये टी का वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगा फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, then ft will be an energy signal, that means your ये पहला वाला था जो e टू दी पावर करके जो था डिक्रीजिंग था ना, ये वाला e टू दी पावर -4t, सोचो t का वैल्यू जब इंफिनिटी होगा xt का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो दिस नेचर का फंक्शन के लिए बोल रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया। वो जो मैंने प्रॉब्लम ये है उसके लिए हम लोग कुछ कमेंट्स लिखे हैं। तो xt इज एग्जिस्टिंग फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन, 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन अंत में कन्वर्जिंग है ना कि नहीं, कन्वर्ज कर रहा है 0 से ये, इसलिए क्या होता है मैंने लिखा इफ xt इज एग्जिस्टिंग फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन एंड इज डिक्रीजिंग इन नेचर, क्योंकि डिक्रीजिंग इन नेचर है, वो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है उस तरफ ये सिग्नल होता है, तो अंत में जब वैल्यू का टी वैल्यू का जो इंफिनिटी हो गया तो अल्टीमेटली सिग्नल का वैल्यू वेनिश हो जाएगा, दैट इज इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी विल बी 0, देन एफ टी विल बी एन एनर्जी सिग्नल। तो तुम दिमाग में रखो जो तुम्हारा फंक्शन मिलेगा तो देखोगे वो डिक्रीजिंग नेचर का है और अंत में वैल्यू 0 आ रहा है, भाई टी टेंडिंग टू इंफिनिटी फंक्शन वेनिश हो रहा है, तब तुम देखने में बोल सकते हो कि ये एनर्जी सिग्नल है, ओके। सेकंड में क्या लिखा है यहाँ पे, देखो xt द फंक्शन xt एग्जिस्ट फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन, वो फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए है, इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए नहीं है। पहला वाला जो था वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए 0 से इंफिनिटी तक हो सकता है, लेकिन ये फाइनाइट है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दिखाया तुम लोगों का अच्छे से -2 से 4 तक, तो ये फाइनाइट ड्यूरेशन में है, और you can choose 5 -5 to +5 as per your choice, so an amplitude भी 4 है, ठीक है, तो amplitude भी 4 है, फाइनाइट ड्यूरेशन भी है। तो देखो xt exist for finite duration -2 to 4, no doubt about that, and value of xt is finite, देखो value of xt is 4, amplitude भी finite है at all points, okay, then xt will be an energy signal। इस तरह तुम्हारा सिग्नल मिलेगा तो वो क्या होगा, वो एनर्जी सिग्नल होगा। एनर्जी सिग्नल क्या होगा, जब एक्सपोनेंशियल नेचर का होगा बट दैट शुड बी डिक्रीजिंग इन नेचर, एंड अंत में जब वैल्यू का टी वैल्यू का जब इंफिनिटी होगा देन सिग्नल का वैल्यू 0 होने से वो एनर्जी सिग्नल हो जाएगा। और भी एक तरीका है, तुम्हारा सिग्नल का वैल्यू ड्यूरेशन वो फाइनाइट होना चाहिए, ओके, एंड एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट होना चाहिए, एंड वैल्यू ऑफ xt इज फाइनाइट एट ऑल पॉइंट। देखो -2 से 4 तक, -2 से 4 तक तुम सिग्नल का जो वैल्यू मिलेगा देखो, सो ये फाइनाइट है, यहाँ पे फिक्स्ड है बिकॉज दिस कांस्टेंट टाइप नेचर का है। तो ये जो मिलेगा ये सिग्नल डेफिनेटली क्या होगा, एनर्जी सिग्नल होगा। देखो ना एनर्जी हम लोग निकल करे हैं यहाँ पे, so we have find out the energy of this signal to make you understand। e of x ये लिमिट क्या होगा, -2 से +4 तक होगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होगा तो 4 स्क्वायर होगा तो 16t होगा, 16 हो गया, तो 16 तो कांस्टेंट है, dt के लिए t हो जाएगा -2 से 4, सो ये लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, सो अल्टीमेटली 96 जूल्स हो गया। तो देखो ये जो सिग्नल है ये फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए है
and you are getting a constant or finite values for all points starting from beginning to end. तो ये जब होगा तब ये एनर्जी सिग्नल होगा। तो ये था दो कंक्लूजन। नाउ थर्ड में देखो, ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स। ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल। ये पावर होगा, वो काट हो गया, समझ में रखो। ऑल पीरियोडिक, बिकॉज ये मैंने पहले भी लिख चुके हैं, ऑल द पीरियोडिक सिग्नल आर पावर सिग्नल्स। ठीक है, so when we are going to send these notes, we will change this slide, this page. Okay, so all periodic signals are periodic power signals, but converse is not true. जैसे मैंने एग्जांपल देके मैंने बोल दिया। नाउ फोर में और एक कंक्लूजन है पावर सिग्नल के लिए। देखो, इफ xt इज नॉट ए पीरियोडिक सिग्नल, xt तुम्हारा पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। पीरियोडिक होगा तो पावर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, xt इज नॉट ए पीरियोडिक सिग्नल नॉट, दैट मींस ये ए पीरियोडिक सिग्नल, बट फॉलोज दिस कंडीशन। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्या है ये, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ टी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एफ टी नॉट इक्वल टू 0, t टेंडिंग इंफिनिटी। ठीक है, दैट मींस क्या है, ये डिक्रीजिंग, क्या बोला, t जब इंफिनिटी होगा फंक्शन का वैल्यू 0 नहीं है। t जब इंफिनिटी होगा वो 0 नहीं है। ठीक है, और क्या है, और एक, और लिमिट t टेंडिंग टू जब इंफिनिटी होगा एफ टी इंफिनिटी नहीं है। हमने इसका वैल्यू क्या है, 0 नहीं है और इंफिनिटी नहीं है, एनी वन, बट ये एपीरियोडिक सिग्नल। तो तुम्हारे पास एपीरियोडिक सिग्नल मिल गया। नाउ तुम देख रहे हो इस सिग्नल का वैल्यू। ठीक है, एफ टी में, एफ टी टी टेंडिंग इंफिनिटी 0 नहीं है और टी इक्वल इंफिनिटी नहीं है, तो ये पावर सिग्नल होगा। तो आई थिंक दिस इज नॉट क्लियर टू यू। यू टेक वन एग्जांपल, ऑलरेडी यू हैव टेकन एग्जांपल। देखो, गो टू द, मूव टू द प्रीवियस स्लाइड। देखो, ये एक्स टी इक्वल ये टी है, ये बोलो ये पीरियोडिक सिग्नल है कि नहीं है, वो ये ए पीरियोडिक सिग्नल है। कल फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दूसरा क्या बोला, जब t इंफिनिटी होगा तब तुम्हारा ut 0 नहीं होना चाहिए और ft 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जरी 0 नहीं होगा, t इंफिनिटी होने से ut 1 ही है, फंक्शन का वैल्यू 1 ही है, तो वो सेटिस्फाई कर दिया। और t जब इंफिनिटी होगा फंक्शन का वैल्यू इंफिनिटी नहीं होगा, ये भी सच है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए देखो, ये ut पावर सिग्नल है। देखो मिल रहा है कि नहीं, ये एक सिग्नल देखो, साइन टी यू टी, ये एक्स टी का वैल्यू जब t इक्वल टू इंफिनिटी होगा, इसका एक्स टी का वैल्यू क्या है बोलो, 1 ही है, +1 से -1 रेंज में है, सब फाइनाइट है, ये 0 नहीं है, एक्स टी का वैल्यू 0 नहीं है व्हेन t टेंडिंग टू इंफिनिटी, और एक्स टी का वैल्यू इंफिनिटी भी नहीं है व्हेन द वैल्यू ऑफ t इज इंफिनिटी, क्योंकि ये +1 से -1 अंदर ही रहेगा। सो नाइदर 0 नॉर इंफिनिटी, but it is aperiodic. So all the conditions are satisfied, then we can say that the signal is a power signal. So these conclusions, वो जो 4 conclusion मैंने लिख चुके हैं, these are most useful whenever you are going for doing some sort of numerical problems, or you can go for some sort of competitive exam or GATE exam. ये जो conclusion है ये दिमाग में रखना है, और अच्छा से समझने के बाद ये दिमाग में रखना चाहिए। तो बोलो, ये जो मैं 4 कंक्लूजन दे दिया, 1 2 3 4, तो डाउट है तो बोलो। सर 4 नंबर कंक्लूजन सर एक बार बताइएगा ना सर। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। देखो, xt मैंने क्या बोला, ये एपीरियोडिक सिग्नल होगा, तो ut मैंने दिखाया तुमको, तो ut एपीरियोडिक है। ठीक है, बोलो ये सर नो, यस सर। ओके, ut एपीरियोडिक है, वेरी गुड। नाउ देखो, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ टी नॉट इक्वल टू 0 बोला है, तो लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी ut नॉट इक्वल टू 0 ही है, वो उसका वैल्यू क्या है, यस सर। ये 1 है, यूनिटी है।
तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो दैट मींस ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और इन्फिनिटी भी नहीं है क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है, तो इसलिए वो ut तुम्हारा पावर सिग्नल ही होगा। देखो ये मैं खुद से अंडरस्टैंडिंग के बाद ये लिख चुके हैं, ये किताब में डायरेक्टली नहीं भी मिल सकता है। एंड जो सेकंड जो एग्जांपल मैंने लिया है देखो, वो sin t और ut के लिए, ये भी तुम्हारा पावर सिग्नल ही होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है t जब 0 इंफिनिटी होगा इसका वैल्यू 0 नहीं है, और t का वैल्यू जब इंफिनिटी के है xt का वैल्यू भी इंफिनिटी नहीं है, बट ये एपीरियोडिक भी है। तो ये पावर सिग्नल है। सो बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है जो मैंने एग्जांपल दे दिया ना, इसके अंदर ही क्वेश्चन आएगा। ये कुछ नॉन फॉर्मूला है, लिख के दे दिया हूं मैं, बुक में भी किताब में भी मिल सकता है शायद। ये देखो ये क्या है बाबू, वन एग्जांपल मैंने दे दिया। ये पीरियोडिक दिखने में ये लग रहा है ये पीरियोडिक सिग्नल है, क्योंकि ये इस रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर certain specific time interval. Okay, so definitely that sort of signal is a periodic signal, and it's a triangular sort of. तो ये पीरियोडिक सिग्नल है, दिखने में ये समझ में आ जाता है कि ये पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, सो देखो हम लोग पावर कैलकुलेट किए हैं, पावर फाइनाइट मिल गया। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, एंड वंस यू नो द एम्पलीट्यूड यू गॉट द पावर ऑफ द सिग्नल। सो इसलिए मैंने बोला पीरियोडिक होगा तो वो पावर सिग्नल होगा, ये कंक्लूजन भी सेटिस्फाई कर चुके हैं। ये जब ये जब पीरियोडिक सिग्नल होगा तो पावर सिग्नल होगा ही होगा, पावर सिग्नल होगा ही होगा। तो देखो ये कैसे हम लोग पावर फाइंड आउट किए हैं। देखो तो ये देखो फॉर्मूला तो तुम जानते हो, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन t माइनस t बाय 2 प्लस t बाय 2 x ऑफ t से डिस्कस कीजिए, ये है। तो ये देखो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो तुमको क्या लाना है, वन पीरियड लेना है। इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, वन पीरियड माइनस टी बाई 2 से प्लस टी बाई 2 तक और माइनस टी से प्लस टी तक, ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मूलेट है। इसलिए देखो माइनस टी बाई 2 से प्लस टी बाई 2 हम लोग चूज किए हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू सी द प्रॉब्लम, इट्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू। तो डेफिनेशन में क्या है, तुम्हारा लिमिट माइनस टी बाई 2 से प्लस टी बाई 2 होना चाहिए, इसलिए मैंने चूज किए हैं ये पीक टू पीक है। ठीक है, माइनस टी बाई 2 ये है, प्लस टी बाई 2 ये है, एम्पलीट्यूड क्या है, प्लस ए है। तो जो सिग्नल आई हैव शोन यू एम्पलीट्यूड इज प्लस ए, एंड वी आर कंसीडरिंग माइनस टी बाई 2 टू प्लस टी बाई 2, दिस मच अमाउंट। तो ये वन स्लोप है, ये भी वन स्लोप है, ये फॉलिंग, ये राइजिंग, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। So you have to calculate, estimate the slope, because you will know that it's a straight line, it's a kind of y is equal to mx plus c नेचर का है। ये जो है y is equal to mx plus c नेचर का है, बट यहाँ पे c 0 है। देखो because it meets at origin, not cutting the y axis anywhere, so it cuts the y axis at origin, so that's why c should be 0 here. As you people master about in this case, you will master, you are master in all these trigonometric calculations because you passed 10 plus 2. So but still I am telling you y is equal to mx plus c, यहाँ पे 0 है। Now m, what is m is slope, so you have to find out the slope here. Okay, t x क्या है यहाँ पे, x is equal to यहाँ पे t है। ठीक है, तो you have to find out the slope। तो slope क्या होगा, देखो क्या होगा ये, तो that point minus that point, okay, so that point minus that point, ये क्या है, ये 0 है, इसलिए 0 माइनस ये एम्पलीट्यूड क्या है, a है, 0 माइनस a है, डिवाइडेड बाय ये x का वैल्यू डिफरेंस करो, तो ये क्या है, ये क्या है, 0 है, इसका वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू यहाँ पे क्या है और t का वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस टी बाई 2 है। सो 0 माइनस और माइनस टी बाई 2, तो यहाँ डिफरेंस मिल गया, इधर भी डिफरेंस मिल गया। ठीक है,
तो डेल वाई बाई डेल एक्स बेसिकली स्लोप क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स बेसिकली स्लोप होता है, यू पीपल नो दैट। तो डेल वाई कितना मिला, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डिफरेंस, सो एम्पलीट्यूड का डिफरेंस क्या है, जीरो माइनस से हो गया, ये dx क्या होगा, ये जीरो है, ये माइनस टी बाई टू है, जीरो माइनस और माइनस टी बाई टू, सो अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस से ऑन लोअर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, प्लस टी बाई टू होगा, सो माइनस ए बाई टी बाई टू, तो अल्टीमेटली टू ऊपर चला जाएगा, माइनस टू ए बाई टी, तो दैट इज द स्लोप। देखो ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है। So mathematics tell you everything. Mathematics tell you everything. To discuss or analyze, mathematics is important. So minus 2a by t. So definitely plus 2a by t हो जाएगा positive slope because all are same. So slope in this region is minus 2a by 2. तो तुम्हारा expression क्या होगा, xt is equal to क्या हो जाएगा, minus 2a by t. That is the slope. That is m मिल गया। एंड x का वैल्यू क्या है, इधर x तो नहीं है, इधर t है, तो t हो गया। तो xt का वैल्यू क्या है, माइनस टू ए बाई टी इंटू टी, दैट इज फॉर दिस स्ट्रेट लाइन, एंड फॉर दिस स्ट्रेट लाइन ट्वाइस ए बाई टी इंटू टी। ओके, सो बेसिकली these two are the expression. So minus t by 2 से जीरो तक ये एक्सप्रेशन होगा, और जीरो से t by 2 तक ये एक्सप्रेशन होगा। Now you got the एक्सप्रेशन, xt तुमको मिल गया। ना तुम्हारा पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में पुट कर दो, px इक्वल टू 1/t, ये फर्स्ट वाला क्या होगा, माइनस टी बाई टू से जीरो तक, देखो माइनस टी बाई टू से जीरो तक, ये फंक्शन का मॉड ऑफ फंक्शन क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। सो ट्वाइस ए बाई टी माइनस ट्वाइस ए बाई टी इंटू टी होल स्क्वायर डी टी हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, जीरो टू प्लस टी बाई टू होगा, जीरो से प्लस टी बाई टू, ये भी फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है, 2a बाई टी है, 2a बाई टी इंटू टी होल स्क्वायर हो गया। तो ये था तुम्हारा